हेलो एवरीवन, हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ए इनवर्स की कि ए इनवर्स आपका क्या होता है। ए इनवर्स इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यू कैन से 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है आपकी? कोफैक्टर ऑफ ए एंड देन ट्रांसपोज। तो ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी? ए इनवर्स की। और हमें पता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट if and only if determinant of A is non-zero, that is matrix should be non-singular. Matrix should be non-singular. So this was the definition of A inverse, and the determinant A inverse will exist if and only if determinant of A is non-zero, or we can say the A inverse exists if and only if matrix is non-singular. तो ये थी ए इनवर्स। अब एक एग्जांपल देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल है आपका, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए which is given as 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। सो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। सो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए कैसे निकलता है? कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा हमारे पास? कोफैक्टर ऑफ ए C11 C12 C13 C21 C22 and this is C23 C31 C32 and this is your C33। तो ये हमारा क्या होगा? कोफैक्टर। सो फर्स्ट एलिमेंट अगर हम निकाले तो कोफैक्टर ऑफ C11 कोफैक्टर ऑफ A11, दैट इज कोफैक्टर ऑफ 1। दिस इज इक्वल टू -1 + 1, and we have to delete this row and this column, then we are left with the matrix 3 0 -2 1। सो ये डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा? 1 × 3 3 माइनस में 0 × -2 0। सो दिस इज 3 एंड -1 की पावर 2 क्या हो जाएगी आपकी? +1। सो हमारे पास जो C11 की वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास? C11 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारे पास C12 -1 की पावर 1 + 2। देन वी हैव टू delete the row first and column second. This is row first and this is column second. So then we are left with the matrix -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 1। So we are left with this matrix. Then we have to find determinant of this matrix. So -1 to the power 3 and this determinant is equal to -1 -0। So -1 to the power 3 -1, this is -1। So overall क्या हुआ हमारे पास? +1। So C12 is 1। Now C13 is -1 की पावर 1 + 3। Then we have to delete the row first and column third. This is row first, this is column second. Then we are left with the matrix -1 3 0 -2 -1 3 0 -2 -1 की पावर 4 1 into we have to solve this determinant 2 - 0, that is 2। So C13 is 2। Now we have to find second row। start with C21 -1 की पावर 1 + 2। Then we have to delete row second and column first. This is row second, column first. Then we are left with the matrix 2 -2 -2 1 2 -2 -2 1। So -1 की पावर 3, this determinant is 2 -4। So -1 की पावर 3 -2, this is -1 -2, that is 2। C21 is
Now we have to find C22, that is minus 1 की power 2 plus 2. Same, then we have to delete the row second and column second. Then we are left with, after this deletion, is minus 1 minus 2, 1 minus 2, 0, 1. This is row second, row column, second column. Then we are left with the matrix 1 minus 2, 0, 1. 1 minus 2, 0, 1. So minus 1 की power 4, 1. 1 minus 0, that is 1. So C22 is 1. In the similar way, we can find C23, minus 1 की power 2 plus 3. And then matrix which is left after the deletion of second row, third column. This is second row, third column. 1, 2, 0, minus 2. 1, 2, 0, minus 2. So minus 1 की power 5. This is minus 2, minus 0. So minus 1 की power 5, minus 1 into minus 2 is 2. So C23 is 2. Now we have to find C31. Minus 1 की power 1 plus 3. We have to delete the third row and first column. This is third row and first column. Then we are left with the matrix 2 minus 2, 3, 0. 2 minus 2, 3, 0. So minus 1 power 4. This is 0 minus 2 into 3. So this is minus 1 की power 1, minus 1 की power 4. तो 1. This is minus 6. 1 minus this one. So minus into minus 6. This will be 6. This is equal to C31. So C31 is 6. Now C32. Minus 1 की power 3 plus 2. Then we have to delete the third row, second column. This is third row, second column. Then we are left with the matrix 1 minus 2 minus 1, 0. 1 minus 2 minus 1, 0. So this is minus 1 the power 5. And this determinant is equal to 0 minus 2. Minus 1 the power 5 minus 1. This is minus 2. Overall we get 2. C32 is 2. Now finally C33, minus 1 की power 3 plus 3. In this case we have to delete third row and third column. This is third row, third column. Then we are left with the matrix 1, 2, minus 1, 3. 1, 2, minus 1, 3. So minus 1 the power 6, that is 1. And this determinant equal to 3 plus 2, that is 5. So 5 is the value of C33. Now we are ready with the cofactor matrix. So the cofactor of A we have to just simply put the value all Cij into this matrix. So C11 is 3, C12 1, C13 2, C21 is 2, C22 is 1, C23 is 2, C31 is 6, and C32 2, C33 is 5. So this is our matrix called cofactor matrix of A. But we know the adjoint of A is equal to cofactor of A, the transpose. Right? So we have to take the transpose of this matrix. For the transpose we can write Rj with Cj. Means we have to convert row into column and column into row. So first row will become first column C312, and this second row becomes second column 212, and this third row will become third column 625. So this is our adjoint of A. Now finally we know A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. So we have to find the determinant of A first.
in fact you have to check determinant of a in the beginning of the question, because if determinant of a is equal to 0, then we can say this inverse doesn't exist. So for the you, if you have to given a question about to find the inverse of a matrix, then firstly you must have to check the determinant of a. If it is non-zero, then you have to take the further calculation. Otherwise, if it is 0, then we can say inverse doesn't exist. So determinant of a, and what is our a? 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1. This is our determinant of a. So we can find the determinant of the matrix with the help of row, with the help of any row, any column, you can say. So we are I'm going to find the determinant of the matrix with R1, that is first row. So firstly we have to take first element of the row, that is 1. Then we have to delete this row and this column in which this element is situated. So we are left with the matrix 3 0 minus 2 1. Then we have to take sign minus 2, and this sign is appear due to cofactor, right? Then we have to write this element as well, and then we have to write a matrix which is obtained by deleting the first row and a second column. So matrix is minus 1 0 0 1, then minus 2, and we have to delete this column and this row. Then we are left with the matrix minus 1 3 0 minus 2. So this determinant is 3 minus 0 minus 2, this determinant is minus 1 minus 0 minus 2, this determinant is 2 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 0, 2 minus 0. So this is 3 minus 2 minus 1 minus 2 2, 3 plus 2 minus 4, that is 5 minus 4, that is 1. So determinant of a is equal to 1. So in the beginning of this question you have to find this determinant first, and we know we can easily say this determinant of a is non-zero because 1 is non-zero. This implies a inverse exists. Then we have to do this all the calculation. So we are ready with the determinant of a and adjoint of a. So finally we can write a inverse. So a inverse is equal to 1 by determinant of a into adjoint of a. But determinant of a is 1. So a inverse, this implies a inverse is equal to adjoint of a. So ये जो मैट्रिक्स हमारी आई थी एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज अवर ए इनवर्स, राइट. सो ये हमारा ए इनवर्स. अब मैं क्या कर रही हूँ, नाउ वी हैव टू स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स. बट जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, मैंने जर्नल प्रूफ भी आपको उसमें दिए थे. तो अब ये इनवर्स में हमें क्या करना है कि जर्नल प्रूफ तो हम नहीं करेंगे, बट जो प्रॉपर्टीज़ होती है इनवर्स की वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आए उनमें हम उनको डायरेक्ट यूज करें. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी. इफ ए बी एनी n cross n square matrix, because for A inverse matrix should be square matrix. If A be any square matrix which is non-singular, then A into A inverse equal to identity of n cross n. सो किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स.
और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, मैट्रिक्स ए। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स की, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब इसका यूज मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन में कैसे हो सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल है आपके पास, इफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 2, 7 एंड बी matrix is 1, 3, 2, 4, then ये एग्जाम्पल सॉरी, ये दूसरी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल स्किप करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। फाइंड द, इस तरह से मीन्स आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, ये बोल दे, देन वेरीफाई ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो जैसा कि हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल था, अभी जो हमने एग्जाम्पल किया जिसमें हमने ए इनवर्स निकाला है, तो ए इनवर्स हमारा मैट्रिक्स का था ये वाला। सो इसी को वेरीफाई करेंगे हम कि मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैट्रिक्स थी वही 1, 2, -2, -1, 3, 0, 0, -2, 1, and we have to verify this property A into A inverse is equal to identity of 3 cross 3 because A matrix is 3 cross 3. As we already know, adjoint of A, or you can say A inverse is equal to, हमारा जो इनवर्स आया था वो था 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5. So this is our A inverse, this is our A. Now we have to verify this equation. So for this equation, consider left hand side A into A inverse, या सेकेंड भी बोल सकते हैं हम अब इसको, A into A inverse इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और A inverse into A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये होती है मेन प्रॉपर्टी। मीन्स A inverse को आप लेफ्ट में रखें या राइट में रखें, तो और उसी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इस एग्जाम्पल को वेरीफाई करेंगे। दिस इज अवर ए, दिस इज अवर ए इनवर्स। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स A into A inverse. So A is 1, 2, -2, -1, 3, 0, 0, -2, 1, 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5. So you have to find this first, and finally you get this will be a identity matrix of 3 cross 3. Then it will become your right hand side. So this is the way of verification. Firstly you have to consider left hand side, then you have to show this, then you have to calculate, or it will be automatically to equal to the right hand side. कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करनी पड़ेगी, देन आपको राइट हैंड साइड सोल्व करनी पड़ेगी, तो हम उन दोनों से क्या बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी होंगी जिसमें आपको ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिखाना है। जैसे ही आप ए इंटू ए इनवर्स सोल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं ये क्या आ गई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की थी, आके आ गई राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ अब इसी प्रॉपर्टी का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। एग्जाम्पल है इफ, इसी तरह के हो सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। इफ ए इक्वल्स टू 2, -1, 1, -1, 2, -1, 1, -1, 2, then first you have to verify a cube -6a square plus 9a
minus 4i equals to 0. And then we have to find A inverse. A inverse in the term of A square, A and AI. मीन्स क्या करना है हमें, ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए इनवर्स को सोल्व नहीं करना, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के हम एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहे थे, देन हमें क्या मिल रहा था, ए इनवर्स। ऐसे नहीं करना, बट हमें क्या दिखाना है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, इनका कॉम्बिनेशन होगा, मीन्स ए इनवर्स इनके सम में लिखा जाएगा, ये हमें शो करना है। सो ये आपको वेरीफाई करना, आपको फर्स्टली लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए निकालेंगे, इसमें सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आपकी इक्वल टू 0 आएगी श्योर। तो ये आपको वेरीफाई करना है। नाउ अब हम इस इक्वेशन का यूज़, ये हमारी वेरिफिकेशन होगी, अब हम इसका यूज़ करेंगे कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इनवर्स इन द टर्म ऑफ ए स्क्वायर ए एंड ए आई। अब इस इक्वेशन में ए इनवर्स कब मिलेगा मेरे को, जब मैं इस यहाँ पे अगर मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ, तो आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स खुद आ जाएगी। इसका मतलब आइडेंटिटी को अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो इस मैट्रिक्स में हम दोनों तरफ क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। सो ये क्या हुआ आपका, ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। एंड किसी भी मैट्रिक्स की अगर जीरो मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स खुद आएगी। और जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो नाउ ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6a इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 9a इनवर्स ए माइनस 4a इनवर्स आई, दिस इज 0. Now a inverse into a, this can be written as a into a square minus 6a inverse a square can be written as a into a plus 9a inverse a minus 4a inverse I is equal to 0. This is identity because a inverse into a is equal to identity. This is the property of inverse. So identity into a square minus this is identity 6ia plus 9i, a inverse into a is equal to identity minus 4a inverse into I, matrix और identity की multiplication means matrix itself. So 4a inverse is equal to 0. Identity into matrix, the matrix itself, so a square minus 6a plus 9i माइनस 4a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए इनवर्स की। सो टेक दिस होल टर्म इनटू राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इज इक्वल टू 4a इनवर्स। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। सो फाइनली हमने क्या किया, ए इनवर्स को किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ए स्क्वायर ए और आई। अब जैसे ये इक्वेशन हमें गिवन है ए क्यूब ए स्क्वायर देन ए मीन्स थर्ड डिग्री की इक्वेशन है ये, तो जो ए इनवर्स होगा ना वो किसके टर्म में लिखा जाएगा, उससे लोवेस्ट में, ए स्क्वायर देन ए देन आई। अगर यहाँ पे 4 की टर्म में होता है a4 माइनस 6a प्लस 6a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 9a प्लस आई इज इक्वल टू 0, अगर इस तरह का कुछ रिलेशन सेटिस्फाई होता और हमें अगर ए इनवर्स फाइंड आउट करना तो ए इनवर्स किस किस के सम में लिखा जाएगा, ए क्यूब के, ए स्क्वायर के, ए के और आई के, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 4। अगर पावर 4 है तो ए इनवर्स 3 ए स्क्वायर ए और आई के टर्म में लिखा जाएगा। अगर पावर 3 है तो ए इनवर्स किसके टर्म में लिखा जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स उससे लोवेस्ट पावर का सम, लीनियर कॉम्बिनेशन हम बोलेंगे, सम नहीं लीनियर कॉम्बिनेशन।
मीन्स यहाँ पे क्या लिखा गया, ए स्केयर माइनस 6a प्लस 9i। अगर कोई और रिलेशन होता तो उसमें मान लीजिए होता है 6a स्केयर प्लस 3a प्लस i। सो ये क्या है, जो ए इनवर्स था हमारा किसकी टर्म में लिखा गया, इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्केयर ए एंड आई। सेकंड एग्जांपल है आपके पास, सो दैट a is equal to -8 5 2 4 satisfy the equation x square plus 4x minus 42 is equal to 0 and hence find a inverse। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। एक तो मेथड हमारे पास ये होगा कि ए इनवर्स बाय डेफिनेशन हम फाइंड आउट करें एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी हेल्प से विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए वी कैन फाइंड ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो फर्स्टली यू हैव टू वेरीफाई फर्स्ट, replace x by matrix C means a square plus 4a minus 42 is equal to 0. You have to verify this first and this is obviously true. You can easily verify it. Now we are going to use this expression to find A inverse. So to find A inverse I have need the matrix A inverse in this expression. So I can multiply A inverse both side. Now in this अब ये जो एक्सप्रेशन है ए स्केयर प्लस 4a माइनस 42, अब यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 42 है, इसका मतलब ये क्या है 42 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, ए स्केयर फिर हम उस मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ऐड करेंगे। अब मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही तो ऐड होगी ना, अगर आपने सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया तो ये नंबर हो जाएगा 42। सो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है किसी नंबर के साथ है तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे आइडेंटिटी। So multiply both side by A inverse, both side. It give us A inverse A square plus 4a minus 42i is equal to A inverse into 0. So this is A inverse. A square can be written as A into A plus 4 multiply with this expression A inverse A minus 42i into A inverse into I, and A inverse multiply with 0 matrix means 0 matrix. So this is by the property A inverse into A is equal to identity. So this is identity into A plus 4 into identity minus 42 identity into A inverse means A inverse is equal to 0. So identity into the matrix is a matrix itself plus 4i is equal to 42 A inverse. So A inverse is equal to A plus 4i. Now put the value of A minus 8 5 2 4 plus 4 into identity matrix 1 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सो minus 8 5 2 4 मल्टीप्लाई विद 4 विद एवरी टर्म, ये क्या है आपकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दिस इज अवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सो 4 0 0 4। नाउ एडिंग, अब यह क्या है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स मीन्स माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 5 प्लस 0 5 2 प्लस 0 2 4 प्लस 4 8। So this is 42 A inverse, but we have to find A inverse. So A inverse is equal to 1 divided by 42 minus 4 5 2 8. So इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसी का यूज करके हमने क्या निकाल लिया A इनवर्स। हमने सेपरेटली जो डेफिनेशन थी A इनवर्स की एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए उसको यूज किए बिना क्या निकाल लिया A इनवर्स बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। सो आपके पास एग्जाम्पल इस तरह से भी हो सकते हैं। गिवन मैट्रिक्स के लिए आपसे सबसे पहले तो ये बोले कि आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है,
देन बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड ए इनवर्स। सो इस रिलेशन का यूज हम इस तरह से करेंगे कि जो गिवन रिलेशन होगा उसको ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स के हमारे पास क्या हो गया, आज हमने प्रॉपर्टी की है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई किया है। इस प्रॉपर्टी को हमने जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी एग्जाम में उन उसमें कैसे यूज करना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसमें हमने इसका यूज़ किया है इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है जो हमने इस एग्जाम्पल में यूज की है। सो आपके पास एक तो या तो डायरेक्ट ये बोले कि फाइंड ए इनवर्स किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है। सेकंड वे आपका हो सकता है कि आपसे कोई रिलेशन वेरिफिकेशन के लिए दे, मीन्स फॉर ए गिवन मैट्रिक्स ए यू हैव टू वेरीफाई, मीन्स कोई भी रिलेशन आपको यू हैव टू वेरीफाई, यही बोल दे ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एंड देन ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यू हैव टू वेरीफाई दिस रिलेशन। तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स इंटू ए, इनवर्स को लेफ्ट में रख के मल्टीप्लाई करना है, देन ए इनवर्स को राइट में रख के मल्टीप्लाई करना है। दोनों सिचुएशन में आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। या इस तरह के एक्सप्रेशन आपसे वेरीफाई करवाए तो सेकंड मेथड या थर्ड मेथड ये हो सकता है कि गिवन मैट्रिक्स के लिए आपसे कोई रिलेशन सेटिस्फाई करवाए और उसके बाद यही बोले कि इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। सो ये थे आपके ए इनवर्स से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की आज ए इनवर्स की, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। 3 से 4 प्रॉपर्टी हैं, दो तीन लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे, इनवर्स वाले चैप्टर को, चैप्टर नहीं सॉरी इनवर्स वाला टॉपिक, राइट। सो ये है आपका ए इनवर्स। इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको इनवर्स फाइंड आउट करना हो या इस तरह का कोई रिलेशन आपसे वेरीफाई करा लें या फिर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दे कि गिवन मैट्रिक्स के लिए ये रिलेशन वेरीफाई करो एंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। सो ये 3 to 4 वेज हैं इसके ए इनवर्स से क्वेश्चन पूछने के। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे ए इनवर्स की कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ, कि जो ए इनवर्स है ना, इनवर्स जो होगा वो आपका रिवर्स लॉ से ओपन होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ए इनवर्स को ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, जो लास्ट वाले मैट्रिक्स है बी इनवर्स देन ए इनवर्स, ना कि ए इनवर्स बी इनवर्स। ये आपका इक्वल नहीं मिलेगा कभी भी, इन जनरल की बात है। उस मैट्रिक्स की एडजस्टमेंट ऐसी हो कि ये वेरीफाई हो जाए, बट इन जनरल अगर हम बोले किसी भी रैंडम मैट्रिक्स के लिए तो ए बी इनवर्स जो आपका होगा दिस इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ये किसके इक्वल होता है आपका, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स देन ए इनवर्स। सो ये आपका ऑलवेज ट्रू होगा हर मैट्रिक्स के लिए। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we discuss about this property and the example related to this.